بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام آج عظیم زمانے کے ساتھ۔ ناظرین ہم بات کریں گے ڈی ایچ استاد شیخوپورہ کی صورتحال پر، جہاں پر گزشتہ روز صوبائی سیکرٹری ہیلتھ نادیہ ثاقب نے دورہ کیا ہے، اور اپنے دورے کے دوران انہوں نے وہاں جو صورتحال معلوم کی اور مریضوں سے ملی، ان کے لوائسین سے ملی، افسران سے بھی ملی، اور وہاں جو عملہ صاحبان سے ملی۔ انہوں نے دورے کے دوران جو چیز محسوس کی، اس کے بعد انہوں نے ایم ایس کو تبدیل کر کو معطل کر دیا، چینج کر دیا۔ بڑی ڈیولپمنٹ ہے شیخوپورہ ڈی ایچ اسپتال کے بارے میں، یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اور اس اسپتال کے بارے میں پہلے بھی کافی لوگوں کی شکایات تھیں، ڈاکٹروں کی غیر حاضری، ادویات کی عدم فراہمی، صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات کے حوالے سے لوگوں کی شکایات تھیں۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شاہد عمران مات نے بڑا کام کر رہے تھے۔ یقیناً 3-4 اہم ایشو تھے شہر کی، جس پر وہ کام کر رہے تھے، جن میں جو شیخوپورہ میں ایک مین جو ایشو ہے وہ آپریشن تھا، اس پر انہوں نے فوکس کیا ہے۔ اس پر ڈے ٹو ڈے کی جو رپورٹ ہے وہ اعلیٰ حکام کو دے رہے ہیں۔ مریم نواز شریف کا جو پنجاب ہے، اس پنجاب کے حوالے سے جو ستھرا پنجاب ہے، اس پر بھی ڈپٹی بڑا کام کر رہے تھے۔ تو ہم نے اس صورتحال پر ان سے پوچھا ہے، ان کے جو خیالات ہیں، جو ان کا ویژن ہے، جو حکومت کی پالیسیاں ہیں، ان کے بارے میں ہم نے جب ان سے بات کی تو آج ہم نے اس سلسلے میں ان سے رابطہ کیا ہے اور پوچھا ہے کہ اسپتال کے حوالے سے کہ کیا ڈیولپمنٹ ہے، کس طرح کی بہتری آ سکتی ہے، اور اس طرح جو باقی جو تحصیلوں کے ٹی ایچ پی اسپتال ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے بہتری کے لیے، مریضوں کی سہولت کے لیے، ادویات کی فراہمی کی وجہ سے۔ تو اس میں بات کریں گے ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شاہد عمران مان سے۔ آئیے اس سے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو ڈی ایچ کیو کا ایشو آپ بتا رہے ہیں، اس پہ میں بتاتا چلوں کہ یہ پچھلے 2 ماہ سے جو ہے وہ میڈیسن کا اور جو ہے وہ اویلیبلٹی آف جو ہے وہ ڈاکٹرز، ان کا بڑا ایشو آ رہا تھا، جس پہ میں نے اور میری ٹیم نے جو ہے وہ ہاسپٹل کا وزٹ کیا، اور ہم نے ایک ڈیٹیل جو ہے وہ انکوائری رپورٹ جو ہے وہ سیکرٹری صاحبہ کو بھجوائی تھی، جس پہ جو ہے وہ سیکرٹری صاحبہ نے پھر خود جو ہے وہ چیزوں کو خود آ کے دیکھا، اور بڑا ڈیٹیل 3 گھنٹے کا جو ہے وہ وزٹ کیا ڈی ایچ کے ہاسپٹل شیخوپورہ کا۔ اس کے بعد وہ ٹلڈرن ہاسپٹل گئی، وہاں پہ بھی ان کے جو ہم نے چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی تھی، انہوں نے خود ان کو جو ہے وہ وزٹ کیا، مانیٹر کیا۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایم ایس کو جو ہے وہ تبدیل کیا، اور نئے ایم ایس جو ہے ان کو پوسٹ کیا ہے۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں کے اندر جو ڈی ایچ کے ہاسپٹل اور چلڈرن ہاسپٹلز میں جو میڈیسن کے اور اویلیبلٹی آف جو ڈاکٹرز کے ایشوز تھے، ان کو جو ہے وہ انشاءاللہ اوور کم کر لیں گے۔ آپریشن کے بارے میں بات کریں کہ جو اس کی آپریشن کی صورت ہے وہ کیسی ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیے گا عوام کو کہ اس میں کتنی دیر چلنا ہے، اور آپ کا جو ٹاسک ہے وہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آپریشن ڈسٹرکٹ شیخوپورہ کے اندر جو ہے وہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہے۔ جو انکروچمنٹ ہے وہ اس کی 2 ٹائپس ہیں، ایک ہے ٹیمپریری انکروچمنٹ اور ایک ہے پرماننٹ انکروچمنٹ۔ ٹیمپریری انکروچمنٹ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے کل لنڈا بازار کے اندر اسسٹنٹ کمشنر شیخوپورہ نے بڑا گرینڈ آپریشن کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم نے جو عید کے فوری بعد جو ہم نے تاجر کمیونٹی ہمارے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ ہم پچھلے 3 ماہ سے ریگولر میٹنگز کر رہے تھے۔ میرے ڈی سی آفس میں 3-4 ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی، ہم نے ان کو ٹائم دیا۔ اس کے بعد میں نے پرسنلی جو ہے وہ 3-4 بازار کا خود وزٹ کیا، وہاں پہ جا کے تاجروں کے ساتھ مل کے ان کو ریکویسٹ کی کہ یہ ہے جو آپ کے نے گورنمنٹ کی جو اسٹیٹ لینڈ کو جو وہ آپ نے انکروچ کیا، اس کو جو ہے وہ خود جو ہے اس کو اگر گرا دے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو اجمیر تاجران نے ہم سے کمٹمنٹ کی تھی میرے ساتھ جو ہے وہ ڈی سی آفس میں بھی، اور جب میں وہاں پہ بازار کا وزٹ بھی کیا تھا، کہ ہمیں رمضان کا مہینہ جو ہے یہ عبادت بھی کرنی ہے، اور ساتھ جو ہے وہ چونکہ ہماری یہ بڑا رش ہوتا ہے ان دنوں میں، ہماری سیل بہت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ ہمیں ٹائم دے دیں۔ تو میں نے بڑا گریشیسلی جو ہے وہ ان کو ٹائم دیا، اور یہ انہوں نے کہا تھا کہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہوگا اس میں آج صرف جو ہم خود جو ہے اپنی جو ہے وہ تجاوزات کو گرانا سٹارٹ کر دیں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کسی نے بھی 1 انچ بھی جو ہے وہ جو اسٹیٹ لینڈ انکروچ کی تھی اس کو نہیں گرایا۔ تو فائنلی پھر ہم نے ان کو جو ہے وہ کال دی تھرسڈے کو کہ ہم نے سیچرڈے سے آپریشن سٹارٹ کرنا ہے۔ یہ پیورلی جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب کی ڈائریکشن کے اوپر جو پورے پنجاب کے اندر جو ہے وہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو جو چل رہی ہے، اسی کے تحت ہم نے بھی ڈسٹرکٹ شیخوپورہ کے اندر 3 بازاروں کو کلیئر کیا ہے، اور آج ہم نے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا ہے ایک اور بازار رہ گیا، اس پہ جو ہے انشاءاللہ وہ منڈے سے جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر شیخوپورہ کی سربراہی میں آپریشن ہوگا۔ اور یہ میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہ جو بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، یہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہے، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب کی ڈائریکشن کے اوپر ایڈمنسٹریٹولی ہو رہی ہے۔ یہاں پہ تاجر بھائی ہمارے، ہم سب کو ساتھ لے کے اگر کسی کا بھی
इस आपने देखा कि ऑपरेशन के दौरान भी 2 दफ़ा मेरी ताजिर कम्युनिटी के साथ मीटिंग हुई है। जो जिनके रिजर्वेशन थी, कोई सी जगह पे डिमार्केशन का इशू था, तो मैंने फौरी तौर पे एसी शेखुपुरा को भेजा और जाके वहाँ पे उन्होंने खुद अपनी निगरानी में जो है वो ताजिरों की तसल्ली करवाई है। और हम इंशाल्लाह आगे भी किसी ताजिर के साथ, किसी ताजिर के कारोबार के खिलाफ नहीं है। ताजिर हमारे भाई हैं, हमने बाजार में भी जाना है, उन्होंने हमारे पास भी आना है, और हमने जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शंस हैं उनको लेते हुए जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, जो कि अगला चंद दिन जारी रहेगी, जब तक हम डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के अंदर एक एक इंच को जो है वो वागुजार नहीं करवा लेते, हम इसको जो है वो कम जो है कैरी ऑन। मतलब ये बताइए कि ये जो कहा जा रहा है कि सियासी इंतकाम या जाती मामला, इस बारे में जो तस्वीर पैदा किया जा रहा है, बिलखुसूस जो हुकूमती सबक MNA है उसकी तरफ से दंगीर अमेज बयान दिया है, क्या इस बारे में क्या क्या पैगाम देंगे अवाम को कि इस देश में इस तरह का कोई एलिमेंट्स है? इसमें जी मैं ये बताता चलूँ, जो कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मुझे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने यहाँ पे पोस्ट किया है और मैंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसीज को लेके चलना है। यहाँ पे सारे जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं वो मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, हम उनकी बात सुनते हैं और आगे भी इनके जो डूएबल काम है वो इंशाल्लाह हम करेंगे। ये चूंकि गवर्नमेंट का डिसीजन है और पूरे पंजाब का है, यहाँ पे कोई शेखुपुरा के लिए सिंगल नहीं है। और इसमें भी मैं आपके ये चैनल की तवज्जो से बताता चलूँ कि कोई भी अगर ताजर ये समझता है कि हमारे ऑफिस से उसके साथ ज्यादती हो रही है, तो वो मेरे पास आए, मैं उसकी हर किस्म की बात सुनने को तैयार हूँ। लेकिन ये अक्रॉस द बोर्ड है, हम किसी के साथ भी बिल्कुल कोई ज्यादती नहीं कर रहे, ना ज्यादती करेंगे, क्योंकि हमारा ये मैंडेट ही नहीं है। हमने एज पर लॉ चलना है। जो हमारे पास रेवेन्यू रिकॉर्ड है, जो हमारे पास MC के अंदर रिकॉर्ड है, उसको दोनों को देख के असिस्टेंट कमिश्नर जो है ADCG, जो एडमिनिस्ट्रेटर भी है MC के, वो खुद हर चीज को लीड कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जो भी बंदा में आके मिलता है, 2 ताजर आके मिलता है, उसकी बात को हम सुनते हैं, उसकी बात सुन के जो उसकी जनरल रिजर्वेशन है उसको एड्रेस करते हैं। तो ये बिल्कुल चूंकि मैं गवर्नमेंट का मुलाजम हूँ और मेरा ये काम है कि मैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको साथ लेके चलूँ, यही हमारा मिशन है। और इंशाल्लाह किसी के साथ ना ज्यादती की है, ना ज्यादती करेंगे। हाँ, अगर किसी जगह पे इशू है तो वो जो है वो गवर्नमेंट से बात कर ले, जो हमें गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी हम उसके मुताबिक। जी अला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा का ये विजन है कि वो अदारों की कागजी बेहतर बनाएंगी और उनको अदारों को करप्शन से पाक करेंगी। जो आपकी सरबराही में जिला जो काम कर रहा है, आपने इस सिलसिले में क्या इकदाम उठाए हैं जिससे करप्शन भी कंट्रोल हुई हो और अफसरान का मुलाजमी का के बाद दुरुस्त हुआ, इसके बारे में आपने अब तक क्या किया है? बिस्मिल्लाह। इसमें जी सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो CM साहबा की डायरेक्शन है कि तमाम ऑफिसर जो हैं, डिप्टी कमिश्नर और जितनी सब ऑर्डिनेट्स मेरे स्टाफ है, जितने तहसीलों में ऑफिसर्स हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफिसर्स हैं, उस डेली बेसिस पे 10 से 11:30 बजे तक जो है वो ओपन डोर पॉलिसी के साथ ऑफिस में मौजूद होंगे और तमाम जनरल पब्लिक के अक्रॉस द बोर्ड जो उनके काम है उनको सुनेंगे और उनके जो होने वाले हैं उनको फौरी मेरिट पे उनको रिजॉल्व करेंगे। लेकिन इससे बढ़ के ये है कि मैंने आपने देखा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जब फील्ड में गुजरता है या ऑफिस में होता हूँ, और ऑफिस में जब मैं बैठा होता हूँ तो मेरा दरवाज़ा खा वो पिछला टाइम में फिर भी खुला होता है। और कोई भी शेखुपुरा का जो है वो जो शहरी है, शेखुपुरा की जो आवाम है, वो मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है। मैं उनको अक्रॉस द बोर्ड जो है वो सुनता हूँ, जिसके जो जायज़ काम है वो फौरी तौर पे होते हैं। सबसे पहले है कि उनको ऑफिस में इज्जत दी जाती है, इज्जत के साथ बिठा के उनकी बात सुनी जाती है और जो काम होने वाले वो फौरी किया जाता है। और ये इंशाल्लाह जब तक मैं इधर मौजूद हूँ, ये इंशाल्लाह इसी तरह जो ओपन डोर पॉलिसी पे जो है वो हम काम करेंगे। और जहाँ पे साथ साथ ये भी मैं बताता चलूँ कि जब यहाँ पे मैं पोस्ट हुआ उस टाइम से लेके अभी तक अराउंड 47 के करीब जो हमारे मुलाजम हैं, जिसमें ज़िला कौंसल है, जिसमें मेरे रेवेन्यू के हैं, जिसमें MC का स्टाफ है, जिसमें हेल्थ है, जिसमें एजुकेशन है, जितने भी डिपार्टमेंट्स मेरे सब ऑर्डिनेट्स हैं, उन पे मैंने जो है वो एक्शन लेते हुए जहाँ पे मुझे शिकायत मिली है, मैंने वहाँ पे मुलाजमों को डिसमिसल फ्रॉम सर्विस भी किया है, उनके खिलाफ जो है वो बाकी जो PIDA एक्ट के तहत कार्रवाई है वो भी की है। और अभी रिसेंटली कल जो है वो मुझे मेरे जो आर्म्स ब्रांच है मेरी, वहाँ पे मुझे कुछ मैल प्रैक्टिस की शिकायत मिली थी, तो मैंने तीनों जो मुलाजम है उस ब्रांच के तीनों को सस्पेंड किया और इंक्वायरी हेल्ड की है। तो इंशाल्लाह ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। सबसे बड़ी मेरी कामयाबी ये कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस में मौजूद होता हूँ और जो भी आपने देखा कि जो लोग भी आ रहे हैं उनको सुन रहे हैं, उनको इज्जत के साथ डील कर रहे हैं। और जो है वो फील्ड में इसी तरह जाके जो है वो चीज़ों का डेवलपमेंट स्कीमें हैं, जो हमारी ऑन गोइंग बिल्डिंग्स की चल रही हैं, जो हमारी जो रोड नेटवर्क की स्कीमें चल रही हैं, जो हमारी ज़िला कौंसिल की स्कीम्स है, जो MCs के अंदर है, इसके साथ साथ हम डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा को ब्यूटीफाई कर रहे हैं। आपने देखा कि रोड नेटवर्क को बेहतर कर रहे हैं,
ब्यूटिफिकेशंस हमारे प्लान जो है वो अब अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि हम जो है वो डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो ब्यूटिफिकेशन प्लान लेके आ रहे हैं। साथ इसकी जो पार्क्स हैं उनकी जो है वो ब्यूटिफिकेशन, उनकी जो है रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह सुथरा पंजाब आप देख लें कि डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के अंदर जब से सीएम पंजाब ने जो है वो सुथरा पंजाब प्लान जो लॉन्च किया है, तो आपने देखा कि ग्रेजुअली जो है वो हम माशाल्लाह शेखुपुरा के अंदर, फिरोजवाला, मुरीद के, सफदराबाद, शरकपुर, तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो सुथरा पंजाब की टीमें जो है वो शहर के अंदर भी और गांव के अंदर भी जा रही हैं, और इंशाल्लाह इसको हम ग्रेजुअली इम्प्रूव करेंगे। सर आखिर में बताइएगा कि ये जो फरुखाबाद तक रोड है, शिवपुरा से फरुखाबाद रोड, डबल रोड, इस पर अवाम का बड़ा मुतालबा है, उस पर आपको मुलाकातें भी हुई हैं और वकालान भी एहतजाज किया, लोगों ने एहतजाज किया है, इस बारे में उन्होंने बताया कि क्या डेवलपमेंट है, कब ये मनसूबा शुरू हो रहा है? जी, इस हवाले से ये कि जब सीएम साहिबा ने विजिट किया था शेखुपुरा का, तो उस दौरान जब मैंने सीएम साहिबा को प्रेजेंटेशन दी थी तो वहाँ पे ये इशू पॉइंट आउट हुआ था। तो वो मैडम की बड़ी मेहरबानी, जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस थे उन्होंने भी इस चीज़ को इंडोर्स किया, क्योंकि वो हमारे इस पे पहले भी वो ये इशू लेके चल रहे थे। तो लिखितली उस दिन ये मामला डिस्कस हो गया, तो सीएम साहिबा ने उसको वर्बली अप्रूव कर दिया था। अब जो मामला पीएनडी में मौजूद है, और इंशाल्लाह अगली जो हमारी एडीपी है उसमें जो है वो फरुखाबाद की रोड जो है वो इंशाल्लाह उस एडीपी में रिफ्लेक्ट होगी। जी नाज़रीन, आपने डिप्टी मिनिस्टर शोभा शाह की गुफ्तगू सुनी और उन्होंने जिस तरह अपने अज़्म का इजहार किया, और उनका कहना था कि डीएचओ समेत जो तहसीलों के बाकी अस्पताल हैं उनकी बेहतरी के लिए, मरीजों की बेहतरीन जो इलाज मुआवजा की सूरतें हैं उनकी फराहमी के लिए तमाम वसाइल बुरे कर लाए जा रहे हैं। उन्होंने बात की तजावुज़ खाना ऑपरेशन की, उनका बिला इम्तियाज़ तफरीक किया जा रहा है, और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का जो विजन है सुथरा पंजाब सुथरा किया जा रहा है, इसमें कोई किसी के साथ कोई इम्तियाजी या सलूक नहीं किया जा रहा, किसी साथ ज्यादती नहीं की जा रही। अगर किसी कोई ऐसी एप्लीकेशन है, कोई ऐसी शिकायत है, तो उनके दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, वो आवाम के लिए मौजूद हैं। और इस तरह बात की अदारों की कारकर्दगी के हवाले से, और कहा कि अदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं, इस जिला को करप्शन फ्री बनाने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने अपने इज़्म का इजहार किया है, और इस तरह जो एक अहम मसला था आवाम का, फरुखाबाद डबल रोड की तमीर का, उन्होंने उस पर भी कहा कि इंशाल्लाह इस पर बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। आखिर में अपने दोस्तों से, अपने साथियों से दरख्वास्त करूंगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और तजवीज़ दें, ताकि मैं बेहतर से बेहतर प्रोग्राम कर सकूं।